کے کلام میں لکھا ہے آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حالات کو دریافت کرتا ہے۔ کلام خدا کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، سب کہیں آمین۔ آمین دی آواز بہت ہی کاٹے، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، انسان کی کتاب در حقیقت وہ حکمت ہے، وہ باتیں ہیں، وہ کلام ہے جو خدا نے اپنے بندہ سلیمان سے کیا۔ خدا نے اپنے بندہ کو جو کلام دیا اس نے بتایا، جو حکمت دی اس نے بتایا، اور جو کلام دیا، جو حکمت دی، نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ کتاب میرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات مجھے اس کا دھیان رہے۔ اور یہ وہ کلام ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائے گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز ہرگز۔ اس آیت کے اندر لکھا ہے آدمی کا ضمیر۔ اب جب ہم لفظ ضمیر پر بات کرتے ہیں تو ضمیر ایک ایسا لفظ ہے جس کی بنیاد، جس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ ضمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سر سے لے کے پاؤں تک انسان کی بات ہوتی ہے۔ جب ہم ضمیر کی بات کرتے ہیں تو ضمیر انسان کے اندر کا سارا سٹرکچر ہے جو انسان رکھتا ہے، اندر کیا سوچ رہا ہے، ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ ساری ضمیر کی باتیں ہیں۔ پھر میں کیا ایک بار آپ کے رسمی آیت، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، یعنی کہ جو ہمارا ضمیر ہے وہ خداوند کا چراغ ہے۔ اب پہلا سوال، ہر کسی کا ضمیر تو خدا کا چراغ ہی نہیں ہے۔ کوشچن، ہم جتنے بیٹھے ہیں کیا ہمارا ضمیر خدا کا چراغ ہے؟ آئے اس کے لیے آپ کی رہنمائی کے لیے ایک اور حوالہ خروج کی کتاب سے پڑھیں گے جی، روشن ضمیر کے تعلق سے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرانا عہد نامہ کے اندر جب آپ ضمیر کی بابت پڑھیں گے تو صرف خروج پہلے انسان میں پھر خروج میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو آئیں خروج کی کتاب، میں گزارش کروں گا پادری انیل صاحب سے کہ اس حوالے کو اناؤنس کر کے سب کے لیے پڑھ دیں، ذرا ٹائم کم ہے۔ ہمارے لیے خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 32واں باب اور دوسری آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا جن کے دل میں روشن ضمیر آدمیوں کو بلاتا ہے۔ اب میں نے کہا سوال یہ ہے کہ انسان تو سب ہے، تو چراغ، روشن چراغ کس کس کا ضمیر ہے؟ کوشچن تو یہ ہے سب کا ہے۔ اب خروج کی کتاب میں کلیئر ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ روشن ضمیر، اگر آپ اس کی بابت پڑھتے ہیں تو موسیٰ نے صرف ان کو بلایا ہے جن کا بھروسہ خدا پر ہے، جن کا توکل خدا پر ہے، جو اپنی سوچ کے اندر خدا کو رکھتے ہیں، جو اپنے خیالات کے اندر خدا کو رکھتے ہیں، جو اپنی باتوں کے اندر خدا کو رکھتے ہیں، جو اپنی آنکھوں کے اندر خدا کو رکھتے ہیں۔ ہم جو دیکھیں دو ایسی چیزیں ہیں ہمارے منہ کے اوپر جو ان کا تعلق سارے بدن سے ہے، سب سے پہلے آنکھیں، پھر ہماری زبان
आंखों से जो देख रहे हैं, अगर हम आंखों से देखते हैं कि इस कदम को आगे करना है तो हम करते हैं, अगर जुबान से बोलते हैं कि मैंने आगे जाना है तो हम जाते हैं। इसका मतलब है कि मूसा ने देखा कि खुदा पर ईमान कौन रखते हैं, खुदा पर तवक्कुल कौन रखते हैं। बहुत सारे लोग मूसा के दौर के अंदर भी है जो खुदा पर बड़बड़ा रहे हैं, जो खुदा के खिलाफ कुफर बकते हैं, जो खुदा के बंदों को बातें करते हैं, यहां तक कि उन्होंने अपने हाथों से बुत को बना लिया। खुदा ने क्या कुछ नहीं किया। मूसा के दौर के अंदर इनको 10 अहकाम भी दिए, इसलिए दिए ताकि ये मजहबी, सियासी, समाजी ये अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए समझ सके कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा ने तो पहला हुक्म ही दिया कि इनको बता मेरे हुजूर किसी गैर मबूद की इबादत नहीं करनी, मानना नहीं, सजदा नहीं करना। इसका मतलब है कि रोशन ज़मीर वो है जो खुदा को पसंद आते हैं। रोशन ज़मीर वो है जिनकी बुनियाद खुदा पर है, जिनकी बेस खुदा पर है, जिनकी बातें खुदा के लिए है, जिनकी सोच खुदा के लिए है, जिनका देखना खुदा के लिए है। वक्त बहुत थोड़ा है, चले एक और आयत है। बदन, आपको पता है जी बदन का चिराग क्या है? कोई बता सकता जी बदन का चिराग क्या? हवाला नोट कर ले, पढ़ ले जरा पारी साहब। बड़ा 6 बाब 23 में लिखा है, और अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन तारीक होगा, बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी भरी होगी। आमीन। अब बात हो रही है आंख की। बदन का चिराग आंख है। हमारी आंख जो है इसने हमारे बदन को लेकर चलना है, इसने हमारे बदन को रोशन करना है, इसने हमारे बदन को एक चिराग की मानद बनाना है। देखें, अगर साड़ी आंख ही ठीक नहीं है तो करेंगे क्या? अगर ये आंख हसद के लिए है, बदी के लिए है, गंदी नजर किसी को पर पढ़ने के लिए है, फिर हम इस आंख की वजह से रोशन बदन नहीं हो सकते। इस आंख का तल्लुक हमारे ज़मीर के साथ है, हमारे अंदर के साथ है, हमारे दिल के साथ है, हमारे गुर्दों के ख्यालात के साथ है, हमारे ज़हन की सोचों के साथ है। इस आंख का तल्लुक जुबान की टेस्ट के साथ भी है। जब हम देखते हैं ना कोई चीज तो हम देखते हैं फिर खाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले खा लिए तो फिर आके नहीं, हम पहले आंख से देखते हैं। खुदा कहता है मूसा के वक्त खुदा ने रोशन ज़मीर लोगों को पसंद किया। पढ़ के देख ले, उनकी आंखें पाक थी, उनकी आंखें पाक थी, वो आंखें खुदा के लिए थी, वो आंखें खुदा की पाकीज़गी के लिए थी, वो आंखें खुदा की नुमाइंदगी के लिए थी। आज हम चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर इंसान अपना आप ही बहुत बड़ा डॉक्टर है। अदालत इंसान अपनी आप बड़ी अच्छी अदालत कर सकता है। आज हम दूसरों की अदालतें करने चले हैं, आज हम दूसरों के लिए बातें करते हैं। सुन लीजिए, आज जो मैं आपसे खुदा के कलाम की बाबत बता रहा हूं, रोशन ज़मीर लोग ही खुदा को पसंद आते हैं। रोशन ज़मीर लोगों को ही खुदा पसंद करता है। रोशन ज़मीर लोगों को खुदा चुन लेता है। रोशन ज़मीर लोगों को खुदा कलाम देता है। रोशन ज़मीर लोगों को खुदा तोड़े देता है। रोशन ज़मीर लोगों को खुदा खुदमत देता है। खुदा
किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जिसकी आंख के वसीला से उसका बदन रोशन ना हो। कलाम के अंदर लिखा है खुदा की आंख इतनी पाक है कि बदी को मैंने कहा इस मुंह पर दो ऐसी हमारे पास अज़ा है जो बड़े खास है, एक आंख और दूसरी जुबान। आए इमसाल की किताब में से एक और हवाला पढ़ेंगे जुबान के तल्लक से। इमसाल 21 बाब और उसकी 23 आयात में यूं लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। आमीन आमीन। अब इंसान की किताब, मैंने कहा ज़मीर के साथ दो चीजों का डायरेक्ट कनेक्शन है, आंख का और जुबान का। सुन लीजिए कलामे खुदा में लिखे जो अपनी जुबान की निगहबानी करता है, किसी पसंद पहले अपनी आंख की फिर दूसरे नंबर पे जुबान की। हम इंसान होते हुए हम समझते हैं ऐ जड़ा साढ़े नाल रहता है ये मेरे तो हकीर है, जो इस तरफ रहता है वो हकीर है, जो हमारे लेवल के कपड़े नहीं पहनता ये हकीर है, जो हमारे लेवल की सोच नहीं रखता ये हकीर है। मगर खुदा हकीरों को पसंद करता है, खुदा उनको पसंद करता है जिनकी जुबान पाक है, खुदा के लिए इस्तेमाल होती है। हो सकता है उन्होंने कपड़े पाटे हो सकता है उनके बदन पर जख्म हो सकता है उनसे बू आ रही हो सकता है उनके पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, जिस तरह गरीब लाजर के पास कुछ ना था, उससे बू आ रही है, कुत्ते उसके नसूर चाट रहे हैं। अमीर शख्स गरूर करता है, वो अपनी दौलत पर गरूर करता है, अपनी शान शौकत पर गरूर करता है, मगर गरीब लाजर की जुबान खुदा के लिए इस्तेमाल होती है। उसकी जुबान से खुदा का ईमान जाहिर होता है, खुदा पर तवक्कुल जाहिर होता है गुर्बत के अंदर, है गरीबी के अंदर, है उसने फटे कपड़े पहने हुए, कुत्ते उसके नसूर चाट रहे हैं, मगर ये आंखें भी खुदा के लिए, ये जुबान भी खुदा के लिए, उसका ज़मीर खुदा पर है, किसी शख्स पर नहीं है, किसी ऐसे शख्स पर नहीं जिसके पास दौलत है, जिससे उसको तवक्को हो कि ये मुझे दौलत देगा। न किसी बादशाह पर, न किसी सरदार काहिन पर, न किसी हाकिम पर, न किसी हुक्मरान पर, बल्कि उसका तवक्कुल उस पर है जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। उसका तवक्कुल उस पर है जिसकी बात लिखा है आसमान और जमीन तो टल जाएगी लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ न टलेगी। आज हम इंसान हैं, हम अगर ऐलान हो ना कहीं पे, यहाँ पे किसी को दावत है जी आए जरा अपने ज़मीर की प्रेजेंटेशन तो पेश करें, साहब कहेंगे वाह मेरा ज़मीर बहुत पाक है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ते गली दे विच जांदे हैं कैसे कैसे नहीं करता सब कुछ पता चल जाता है। मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ मेरे साथ बैठ के ऊंची ऊंची दुआ कर रहे, बहुत ऊंची ऊंची, ते घंटे बाद वो एक बहन आ गई कहती पादरी साहब ताड़ा फलां बंदा वड्डियां वड्डियां गालां पिया काटदा हो जाए। कहां गया हमारा ज़मीर? पर हकीकत ज़मीर ईमान को जाहिर करता है, ज़मीर ईमान को प्रेजेंट करता है, ज़मीर ईमान की रखवाली करता है, ज़मीर ईमान की पैरवाई करता है, ज़मीर से पता चलता है कि हम ईमानदार हैं कि नहीं। खुदा हर किसी को पसंद करता ही नहीं। तमसील है नया नामा के अंदर,
हैकल मुकद्दस के अंदर दो लोग दुआ कर रहे होते हैं, एक दा ज़मीर कहता है खुदावंद मैं तो हफ्ते में 2 रोजे भी रखता हूं। मैं अगर कोई कहे कि मैं खुदा की खिदमत भी करूं, इब्लीस की खिदमत भी करूं, तो नहीं, बाइबल मुकद्दस कहती है नहीं कर सकता, वो इब्लीस का ही है। जो खुदा का है वो इब्लीस का हो ही नहीं सकता। इसलिए आप कई बार हम ऐसे होता है ना, हम कहते हैं ज़मीर की बात कर रहा हूं, हम अपने अंदर से एक आवाज, एक प्लान कर लेते हैं, मंसूबा बनाते हैं, जी अब हमने गुनाह नहीं करना, शराब नहीं पीनी, ज़ना नहीं करना, हरामकारी नहीं करनी, सिगरेट नहीं पीनी, नस्वार नहीं पीनी। हम रोशन होने की तरफ चलते हैं ताकि खुदा हमारे बदन को रोशन करे, चलते हैं, मगर अभी हम पहला कदम उठाते हैं तो फ्लॉप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंख चाहती है कि हम उस काम को करें। इस जुबान के वसीला से हम तैयार हो जाते हैं उस बदी को करने के लिए। 2 चीजें अपने कंट्रोल में ले आए। आंख बदन का चिराग है, जुबान की हिफाजत करें, जुबान की निगरानी करें। आप जुबान से जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ लोगों की बाबत कह रहे हैं, खुदा सब कुछ जानता है, खुदा पहचानता है। कोई भी आपको बरकत नहीं दे सकता, किसी से आप बरकत नहीं ले सकते। आंखों से हसद कर सकते हैं, जुबान से तनकीद कर सकते हैं। जिधर से गुस्सा चढ़िया है ना, उधर भी जुबान तो बुरियां गल्लां कर सकते हैं, मुखालफत कर सकते हैं। जिसको आंखों से नापसंद करेंगे उसकी जात की बाबत मन घड़त बातें, उसकी बाबत नासेबा बातें, गलत बातें कर सकते हैं। मगर हमने आयत पढ़ी है कि जिनका ज़मीर रोशन है वो खुदा के चिराग है। किसी नाल जो कोई मर्जी, पंजाबी विच कहंदे ने ना, हांडी सड़दी है अपने ही कंडे लाउंदी है। खुदा जिसको बरकत देगा, खुदा जिससे प्यार करेगा, खुदा जिसको पसंद करेगा, खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। देखे मूसा ने काम के लिए बुलाया, खुदा के काम के लिए बजलीएल को, एलियाब को और रोशन ज़मीर लोगों को, क्योंकि उनकी आंख पाक है, उनकी जुबान पाक है। खुदा ने पसंद किया कि ये रोशन ज़मीर लोग हैं। आज अगर खुदा आपको पसंद नहीं करता, खुदा आपको प्रमोट नहीं कर रहा, खुदा आपको बरकत नहीं दे रहा, चाहे वो औलाद की फरमाबरदारी की बरकत है, चाहे वो फाइनेंशियली बरकत है, चाहे वो खुदा के तोड़ों की बरकत है, चाहे वो खुदा की नेमतों की बरकत है, तो किसी का कोई कसूर नहीं है। किसी से जेलस ना हो, बल्कि खुदा से पूछें, खुदा से पूछिए, खुदावंद ये क्यों ऐसे हो रहा है, तुम्हें मेरी कौन सी बात पसंद नहीं है, मुझ में क्या खामी है। अपने अंदर का हाल खुदा को बता दे। खुदा तो पहले ही जानता है, खुदा तो पहले ही पहचानता है, वो आपके मांगने से पहले ही जानता है। खुदा आपसे प्यार करता है, प्यार करता है तो उसने अपने बेटे यीशु को बख्शा। यीशु मसीह को इसलिए बख्शा है आप इब्लीस से मार ना खाए। यीशु को इसलिए बख्शा गया कि आप हसद में न रहे, आप जेलसपन का शिकार न हो। लिखा है ना, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। हमने पहले उसकी बादशाही की तरफ बढ़ना है, सारी चीजें तो फिर इनाम में मिल जाएंगी। आज खुदा उनको पसंद करता है जिनके अंदर यीशु मसीह है। खुदा ने अपने बेटे को बख्शा
बख्श दिया। उसकी बाबत लिखा है, जितना ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। यानी के खुदा के बेटे और बेटियां, खुदा के बेटे और बेटियां वो हैं जो रोशन ज़मीर है, जिन्हां दा ज़मीर ही मरिया पिया, जिन्हां दा ज़मीर अबलीस के कब्जे में है। जिनका ज़मीर अबलीस के कब्जे में है, इन आंखों से लोगों की बहनों को, बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं। इस जुबान से लोगों की बहनों, बेटियों के लिए नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मगर जिनका रोशन ज़मीर है, खुदा पर तवक्कुल रखते हैं, वो खुदा में मसरूर रहते हैं। वो शर्मिया की तरह कौम के लिए शिफायत करते हैं, शर्मिया की तरह कौम के लिए आहल नाला करते हैं, शर्मिया की तरह अपनी कौम के लिए आंसू बहाते हैं। वो आंसू बहा बहा कर खुदा को कहते हैं कि खुदावंद हमारे लोगों को बहाल कर, हमारे बेटों को बहाल कर, हमारी बेटियों को बहाल कर। उन पर नाज़िबा अल्फाज नहीं बोलते। आज आप, हो सकता है आप खुदा से बड़ी देर से एक चीज को मांग रहे हैं, बड़ी देर से आप तरक्की को मांग रहे हैं, सरफराजी को मांग रहे हैं, आप फाइनेंशियल बरकत को मांग रहे हैं, मगर आज सवालिया निशान है कि क्या आपके पास जो आपका ज़मीर है वो रोशन है? मैंने दो चीजें बताई हैं, आंख और जुबान। इसकी बाबत आपने गौर करना है। छोड़ दें, ना किसी पर तनकीद करें, ना आसपास देखें, बल्कि अपने आप को देखें, अपने आप पर निगाह करें, अपने आप को एक आईने में खड़ा करके देखें कि कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर जो इस तरह का मसला है जिसकी वजह से मेरी बरकत नहीं बढ़ रही। खुदा, आज हम गुर्बत से मार खा रहे हैं, गुर्बत से खुदकुशियां हो रही हैं, अबलीस ने हमारे घरानों के अंदर नातफाकी डाली है। जिनका रोशन ज़मीर है, जिनके ज़मीर के अंदर ईमान की तकवीयत है, मेरा ईमान है, अबलीस उन्हां दे कोल भी नहीं आ सकता, अबलीस उनको छू नहीं सकता। दाऊद का ज़मीर रोशन ज़मीर खुदा पर तवक्कुल रखते हैं तो कहते हैं, बल्कि खुआ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे वो अपने खुदा पर ईमान रखता है, जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं। उसने आकर ऐलान किया, कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है। वो दावत दे रहा है तमाम ऐसे लोगों को जिनका ज़मीर अबलीस की कैद के अंदर है, जिनके ज़मीर के अंदर बदी है, जेलसपन है, हसद है, हरामकारी है, ज़नाकारी है, बदकिरदारी है, तोहम परस्ती है, बुत परस्ती है। वो कह रहा है, आ जाओ मेरे पास, मेरा जुआ मुलायम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रोशन ज़मीर है उनके लिए, जिसने यीशु को कबूल किया है, उनके लिए वो खुदा के बेटे और बेटियां, वो यीशु नासरी में नए मखलूक हैं, वो नए मखलूक हैं, वो खुदा के चुने हुए हैं, वो शाही कहनों का फरका है, वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, वो खुदा की नुमाइंदगी करने वाले हैं। और जब ऐसे लोग जमीन से रुखसत होंगे, मेरा और आपका यीशु उनके वेलकम के लिए होगा, कहेगा, आओ मेरे बाप के प्यारो, मेरे बाप की दाहिनी तरफ आ जाओ। तो जिन्हां दा ज़मीर ही मर गया होवे, वो वहां पर जाएंगे जहां पर अमीर शख्स गया, और ईमानदार वहां पर होंगे जहां पर गरीब लाजर होगा। आए, अपने आप को आप दुनिया में ना ले जाएं, औरों की मानद ना बने, गैरों की मानद ना बने, आप यीशु मसीह में खुदा के हो जाएं, ताकि वो आपको
ایسا اجر دے جس جگہ کا وعدہ یسوع نے کیا ہے اس کے حقداروں. آئے سب اپنی آنکھوں کو بند